तो ये इन्होंने फार्मूला 1 का ट्रैक बनाया हुआ है जो नॉर्मल रोड का। And the thing is, Caspian Sea. It was up to here. So yeah. So they say it was almost just sea was touching the fort. Some people say it was used like a watchtower. Like old times, some people were coming from seaside. Some people were coming from city side. That's why this old fort had different walls. See, here we don't have any gate. But when you go outside, you will see many gates. And one is very famous, double gate, just near Nizami Street. So that's why they were watching which ships are coming. That time trading was working, that's why. So where is the sea now? See, just here. Just here, huh? Yeah, just here. Across? It's far. Yeah. We will go Up to the park. You will see. Caspian Sea. Then some people say this was some Zoroastrian monument. If you can see from upside, it looks like 9. If you look from upside, it looks like 9. 9 is sacred number in many religions. Yeah. Another thing, you can see it is half. Half is different, half is different. They say some people built it and it was left half, and after some centuries, another generation started continued. That's why it became different. Only that side I will show you. On it there is carved like fort of Masud, son of David. Like David's son, Masud's fort. Maybe it was a builder. He just scraped his own name there. Actually, it is written in Arabic language. Maybe you can read. If you say I cannot read, they say Masud ibn Dawud, something like that. It is written. Yeah. Another. It has 8 floors, and whoever wants to climb, I did it many times when I was small. It is through walls and it is like this, round. Yeah. See, when you are climbing, it is easier. But when you are coming down, it's a little like, it's big. Stairs are a little big. And when you go down, it's round. Sometimes even I will chat, like head goes round. Sometimes you don't fall, but you feel like you can fall. Upside there is view of around Sit and Dog. Before there was no wall. Now you will see there is glass wall around for protection. And if we go a little ahead, we will see model of old city. Yeah, we are here just near Maiden's Tower. This is model of old city. You can see Nizami Street here. If you imagine from sorry. If from here we go directly like this, we go to Nizami Street. It is near. And you can see in old city also. You can enter from any street. You walk, you will come out somewhere. If you enter from here, you walk, come out from the city center. It is not difficult. It's just in between there are some streets which are difficult to walk for elder people, kids, stairs and all, very narrow. Where is Nizami? Big wall. Nizami Street? Yeah, if you go straight. This is Nizami Street? Yeah, this area is Nizami Street. This is museum and all.
So guys, see this building. This is basically a co-working center. See this. In a very old house. This is basically a co-working center has been created. So the modern things meets the old architecture. This is a restaurant. And the whole Mercedes is standing here. This is nuts and Okay. It seems like it's made in 1700. भाई जिन लोगों को ओल्ड आर्किटेक्चर और इनमें इंटरेस्ट उनके लिए तो ये जगह जन्नत है घूमने के लिए. Ironic way about truth of the age. For example, whatever happens, bad things happening to nation and all, he was writing it in ghazals in an ironic, like funny ways. So telling truth. That's why people love him. Ali Agha Wahid. So this small Ali Agha. Ali Agha Wahid. So this park is small Ali Agha.
öğretmiştin sevmeyi. Üstüme kar yağsa lisan dökülse, dünyanın temeli sınıf sökülse, sevincim geyb olup göğe çekilse, canım hasretinin yollarındayım. Üstüme kar yağsa lisan dökülse, dünyanın temeli sınıp sökülse, sevincim gibi olup göğe çekilse, canım hasretinin yollarındayım. सो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया। तो क्या है तुम्हारा? वेदर बहुत बढ़िया है और क्लीन बहुत है, तो मज़ा काफ़ी आ रहा है, नो डाउट। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा तुम्हारा अजरबैजान को लेकर? अच्छा कंट्री है, घूम सकते हैं। तो अगर तुम्हें किसी अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना हो कि अगर वो उसके पास में चॉइसेज हों कि वो जाना चाह रहा है यूरोप और एक बार वो अजरबैजान को भी नहीं कंसिडर, तब उसमें तो खैर यूरोप से मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यूरोप की ब्यूटी एक नेक्स्ट लेवल की है। करेक्ट। बट अगर कोई दुबई में रहता है और इधर मिडिल ईस्ट में रहता है और उसको जस्ट 2 घंटे दूर कहीं जा करके और यूरोपियन देखना फील है, लेना तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा प्लेस है। चीप है और अफोर्डेबल है, तो उस हिसाब से मैं इसको कंसिडर करूँगा, बट मैं इसको यूरोप के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। तो अभी तक तुमको अगर मैं बाकी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि जैसे कि, लोग कैसे हैं जिनसे भी तुमने इंटरेक्ट किया, या सिटी की क्लीननेस, देखो मुझे सेफ्टी, सेफ्टी वगैरह तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। क्लीननेस भी बहुत साफ़ सुथरा है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं कहीं कोई कचरा नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लोकल लोगों से कोई इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं जस्ट आज सुबह ही आया हूँ और जो टूरिस्ट रिलेटेड लोग होते हैं, होटल के स्टाफ और जो हमारा गाइड है, मैं इन लोगों के साथ ही इंटरेक्ट किया हूँ, तो ये तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे और काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा इन लोगों का। तो अच्छा रहा। सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया लोकल कैफ़े में, वहाँ भी बढ़िया एक्सपीरियंस था लोकल। तो लोकल लोग तो काफ़ी अच्छे, मतलब जो मैं कुछ इल्यूजन बना करके आया था वैसा कुछ था नहीं। अगर तुमको कोई एक चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करनी हो तो तुम क्या करोगे? यार यहाँ पे ना क्लीन बहुत है हर चीज़, और हर चीज़ वेल मैनेज्ड है और स्ट्रक्चर्ड है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है, और सब कुछ सारे आप देख रहे हो, बिल्डिंग्स बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर हैं, बहुत मैनेज मेंटेन करके रखा हुआ है इन लोगों ने हर चीज़ों को। तो मैं ये चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ के जो लोग हैं अगर तुम उनको देखो तो किनसे, क्योंकि ये ना तो ये एशिया है ना तो ये यूरोप है, तो यहाँ के लोग तो देखो ये यूरेशिया है कि ये यूरोप और एशिया का मेल्टिंग पॉइंट है। तो कल्चर वाइज जो है सो ये काफ़ी क्लोज है एशिया के, और जो ब्यूटी है, स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ यूरोप के भी काफ़ी क्लोज है। तो इट्स ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। चलो ग्रेट। तो अभी तो हमारा पहला ही दिन है, अभी तो हम जस्ट स्टार्ट ही हमने स्क्रैच ही किया है। वो तो अभी 2-3 दिनों में और चीज़ें पता चलेगी। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है? अभी शाम में हम कहाँ जा रहे हैं? इवनिंग का क्या प्लान है? हम लोग फ्लेम टावर वगैरह देखेंगे और अभी 2-3 जगह, उसके बाद हम लोग निज़ामी स्ट्रीट जाएंगे। ये प्लान है आज का। तो जो हमारे ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं, तो अभी तुम और चीज़ें बताओगे यहाँ के बारे में? श्योर, अभी तो 3 दिन और है हमारे पास। नाइट आउट के बारे में भी बताओगे? जरूर, अगर निज़ामी स्ट्रीट जाएंगे और वहाँ कुछ भी एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली। चलो ठीक है गाइस, Okay. तो आपको मिलते हैं फिर से।
सो गाइज अभी हम लोग निज़ामी स्ट्रीट में डिनर के लिए आए हुए थे, क्योंकि हमारा आज का लास्ट लोकेशन था जहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए भी आए थे और लास्ट प्लेस भी था घूमने का। तो अभी हम लोग हमने एक क्या खाया था अभी अभिषेक, हमने वो यहाँ का जो फेमस था वो क्या था वो, हाँ काइंड ऑफ शोरमा था, जो कि यहाँ अजरबैजान में काफ़ी फेमस है और उसे स्ट्रीट फूड की तरह बेचते हैं लोग। तो हमने वहाँ पे एक ट्राई किया था, चिकन का ही था वो शोरमा, नॉर्मल शोरमे की तरह ही था। टेस्ट तो अच्छा लगा हमें। और जो निज़ामी स्ट्रीट है बेसिकली हैपनिंग सी जगह है, जो आप मान लो कि कैसे किसी भी सिटी में जाते हो तो एक हाई स्ट्रीट होती है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, पब्स होते हैं और हैंग आउट प्लेस होता है। ये कुछ उसी टाइप का है और ओल्ड सिटी से लगा हुआ ये प्लेस है, काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग उसके बाद में एक यहाँ पे आयरिस पब है जहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। तो थोड़े से हम लोग बियर और शीशा का ये ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। तो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, एक तो अभिषेक है आप लोग जानते ही हो, और एक हमारे ग्रुप के ही मेंबर हैं, वो भी केरला से हैं, बाईजू, वो भी हैं। ओके गाइस, सो नाउ अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में। टाइम हो रहा है अभी हमारा, क्या टाइम हो रहा है अभिषेक? 11:50, आप मान लो कि 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं और अभी हम निज़ामी स्ट्रीट से वापस लौटे हैं। तो आपको एक बार अब हम ब्रीफ देते हैं पूरा कि आज पूरे दिन का हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा अज़रबैजान को लेकर, बाकू को लेकर, जो भी हमने देखा, किन किन जगहों पे गए। आप पूरे वीडियो में तो उसको देखोगे ही, लेकिन उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री इस कंट्री का भी इस वक्त मैं थोड़ा सा आपको एक दे देता हूँ, ताकि आप जब देख रहे हो तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो भी समझ में आए। तो अज़रबैजान जो है, जैसा कि हम वीडियो के बीच में भी कई बार बात कर चुके हैं कि ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो 1990 में जब यूएसएसआर का विलय हुआ, जब उसको तोड़ा गया कंप्लीटली, उसमें से 15 कंट्री, जो 15 रिपब्लिक थे वो टूट कर बाहर निकले थे। उसमें से एक अज़रबैजान था। और अज़रबैजान की खूबसूरती ये थी कि इनके पास में बहुत सारा ऑयल और गैस था, जो आप बहुत ही फेमस एक जो इनका ये है जिसको कि बर्निंग माउंटेन कहते हैं, जिसके नीचे से गैस निकलती रहती थी और वो बर्न होता रहता था। आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि इस कंट्री के पास में एनर्जी को लेकर कितनी चीज़ें होंगी। ये पूरी कंट्री की इकोनॉमी उसके दम पे चल रही है। आप जब सिटी को घूमते हो, देखते हो, तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, जो चीज़ें दिखती हैं, आपको क्लियरली पता चलता है कि कंट्री के पास में इनफ मनी है, इनकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, तभी वो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। आज जब हम लोग यहाँ आए, जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो वो बहुत एविडेंट था। उनके एयरपोर्ट को देखकर, उनके रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, जो बिल्डिंग्स थे उनको देखकर, उनके आर्किटेक्चर को देखकर ये बहुत क्लियर था कि कंट्री काफ़ी प्रॉस्पेरस है और उनके पास में इनफ मनी है अपने कंट्री को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब आप इस कंट्री को घूम रहे होते हो, जब देख रहे होते हो, तो आपको 3 डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक ऑफकोर्स एक जो मॉडर्न अज़रबैजान है, जो बाकू है, जिसमें कि आपको बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, मॉडर्न बिल्डिंग्स मिलेंगे, जिनमें कि एक फ्लेम टावर है जो कि इनकी एक तरह से पहचान बन गई है। और भी आपको ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स और ये मिलेंगे जो क्लियरली ये आपको दिखाएंगे कि बहुत ही मॉडर्न सिटी की तरह ये डेवलप हुआ है। लेकिन जब आप सिटी को घूम रहे होगे तो आपको उसमें इनफ ऐसे सोवियत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, बिल्डिंग्स मिलेंगी, जो आपको ये याद दिलाएंगे कि ये जो कंट्री है ये सोवियत एरा की है। तो वो एक आपको बिल्कुल अलग फील देता है, वो एक अलग तरीके का आपको एक्सपीरियंस होता है उनको देखकर। और जो तीसरी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, जब इनके आप ओल्ड बाकू को जाते हो तो आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे आपको एक जो ओटोमन के टाइम पे, जो एम्पायर के टाइम पे जो बिल्डिंग्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो आर्किटेक्चर था, वो आपको देखने को मिलती है। जो संकरी गलियाँ, जो कि काफ़ी कुछ वेनिस के ये से मिलती हैं। शायद यहाँ पे, अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद यहाँ पे किसी टाइम पे जो वाटिकन एम्पायर था, वेनेशियन एम्पायर था, उनका भी यहाँ पे इफेक्ट था यहाँ पे। प्रोबेबली उसके कारण वो सिटी ही पूरी उसी तरीके से बसाई गई है। ऐसा लगता है जैसे कि आप वेनिस की ही गलियों में घूम रहे हो, माइनस वाटर। तो वो इस टाइप का पूरा ये लगता है। और वो यूनेस्को का एक हेरिटेज ये भी बना हुआ है, तो वो एक बहुत ही आपको अलग फील देगा। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप ये समझो कि आज हम यहाँ मॉर्निंग लैंड किए हैं, हम होटल आए हैं,
4 बजे हम होटल से निकले हैं, अभी 12 बजे हम होटल आए हैं। इस बीच में हमने इतनी चीज़ें देखी, इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो कि अगर मैं उसको समराइज करूँ तो मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में इतनी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इस कारण से शायद यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज्म भी है। तो ये प्लेस तो वर्थ है विजिट के लिए, मतलब आपको जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में उनको तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो आज जिन जगहों पे हम गए थे, हमने स्टार्ट किया था ओल्ड बाकू सिटी से, जो कि जहाँ पे कि वो ओटोमन एम्पायर या जहाँ पे जो वेनेशियन आर्किटेक्चर का जो ये था वो हमने देखा। वो काफ़ी देखने लायक चीज़ है। वो ऐसी जगह जहाँ पे आप काफ़ी समय निकाल सकते हो, उनके आर्किटेक्चर को, उनकी जो डिफरेंट मोटिव्स उनके बिल्डिंग्स में बने, उनको देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो वो पहली हमारी वो थी। वहाँ से हम गए थे बुलेवार्ड जो है, जो यहाँ का जो कैस्पियन सी है उसके ऊपर बना हुआ है, जो जहाँ पे आपको काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर और बाकी चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। वो भी एक अच्छी जगह, देखने लायक जगह है वो भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई ऐसी जगह है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, बट वो अच्छी जगह है, ठीक है, वो आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो वो एक है। और उसके बाद जो गए थे वो फ्लेम टावर जो बना हुआ, जो कि एक हिल के ऊपर बना हुआ है, उस फ्लेम जो कि यहाँ की संस्कृति से एक तरीके से जुड़ गया। जो इनके जो फ्लेम माउंटेन थे जो 3, उसके ऊपर उसी को बेस बनाकर उन्होंने उस फ्लेम टावर को बनाया, जो अजरबैजान की पहचान बन गई है। उसके बारे में वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा कि वो कैसे और क्या सिंबलाइज करता है वो। तो वो हमने देखा। और वहीं पे उनका हाईलैंड क्या था, वो हाईलैंड पार्क, हाँ हाईलैंड पार्क है वहाँ पे, जो कि सोवियत एरा के टाइम का ही बना हुआ है। और वो भी काफ़ी अच्छी जगह, हिल पे आपको वहाँ से पूरे सिटी का व्यू मिलता है। वो भी अच्छी जगह देखने की, मतलब आप अच्छा फील करेंगे, स्पेशली जब आप नाइट में जाते हो तो जो लाइटिंग और वो जो आपको सिटी का मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वो एक अच्छी जगह थी। और उसके बाद हम निज़ामी जो स्ट्रीट है वहाँ गए थे, जहाँ की बेसिकली काफ़ी हैपनिंग सी हाई स्ट्रीट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे पब्स मिलेंगे, आप सोवेनियर ले सकते हो, हैंग आउट की जगह है, आप फूड जॉइंट्स मिलेंगे बहुत सारे वहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो वहाँ देखने को मिलती हैं। तो वो हमने देखा और वहाँ पे हमने शाम का जो था वो बिताया। और वहाँ से फिर अभी हम यहाँ, कल हम जो जा रहे हैं, हमारा कुछ और प्लान कल सुबह, उसके बारे में बात करेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो सीरीज चल रही है अजरबैजान की, वो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। और जितना हो सके आप उस पर कमेंट कीजिए, जितने मैं आंसर कर पाऊंगा डेफिनेटली करूंगा। जो भी आप लोग लिखोगे, आप लोग का कोई क्वेश्चन, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो मैं यहाँ के जो एक्सचेंज है, जो यहाँ की जो करेंसी है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप मोटा मोटा ये समझो कि इनका जो एक करेंसी है, एक मन्नत जो है, वो इंडियन रुपये में 52 रुपीज़ के बराबर का है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये है। और इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे। ऐसी हमें तो कहीं प्रॉब्लम आई नहीं है ऐसी। और किसी भी जगह पे आप एक्सचेंज करा सकते हो, ऐसा कोई मेजर आपको डिफरेंस कहीं पे मिलेगा भी नहीं। आप डायरेक्ट एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हो, और उन सब चीज़ों में कहीं कोई प्रॉब्लम हमें दिखी नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं और कल फिर सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।